Good morning, everyone. Good morning, everyone. This is Rohit Gupta. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Applied Science Department. I am teaching the subject probability and statistics, semester 2. Today's topic, what is hypothesis? Today's topic, hypothesis testing, in which we will discuss the hypothesis testing. What is hypothesis testing? Then null hypothesis and alternative hypothesis, all that things. Okay. No. So we can start. Then what is hypothesis testing? A statistical hypothesis is an assumption about a population parameter. Statistical hypothesis is an assumption about a population parameter. This assumption may or may not be true. Sometimes it may be true or may not be true. Hypothesis testing refers to the formal procedures used by statistician to accept or reject statistical hypothesis. Then what is hypothesis? A statistical hypothesis is an assumption about a population parameter. This assumption may or may not be true. Hypothesis testing refers to the formal procedure used by statistician to accept or reject statistical hypothesis. Okay. What is hypothesis testing? Statisticians follow formal procedure to determine whether to reject a null hypothesis based on sample data. This process called hypothesis testing consists of 4 steps. Means when we test and when we have taken a sample data, then we have taken two things. One is one is null hypothesis, another is alternative hypothesis. So we accept a null hypothesis or reject null hypothesis. This will depend on this will consist of 4 steps. First one, state the hypothesis. This involves stating the null, means first thing, first 4 steps are there. First step is state the hypothesis, means this statement involve the stating the null hypothesis and alternative hypothesis. First क्या करेंगे हम कि हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे, दैट इज एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, उसको स्टेट करेंगे व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज alternative hypothesis. The hypotheses are tested in are stated in such a way that they are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस ऐसे हम टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे हाइपोथेसिस को, नल को और अल्टरनेटिव को, दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मींस जो H0 में होगा वो H1 में नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दैट इज इफ वन इज ट्रू एंड द अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर मैं कहूंगा कि H0 ट्रू है तो H1 को फॉल्स दिखाएंगे। आगे हम देखेंगे कैसे, ठीक है। फॉर्मुलेट एन एनालिसिस प्लान। Formulate an analysis plan. The analysis plan describes how to use sample data to evaluate null hypothesis. पहले हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, प्लान को एनालिसिस करेंगे, मींस कि नल हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करेंगे। द इवैल्यूएशन ऑफन फोकसेस अराउंड अ सिंगल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मींस कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, दैट इवैल्यूएशन ऑफ दैट वन इज फोकस ऑन ए सिंगल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मींस एक टाइप के स्टैटिस्टिक्स मेथड का यूज करेंगे। एनालाइज सैंपल डेटा मींस फिर इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मींस स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा है उसका हमें वैल्यू निकालना होगा। दैट मींस हमें क्या निकालना होगा, मीन, प्रपोर्शन, t statistics or z score. Describe in analysis plan. Next one, interpret result. Apply the decision. This is the interpret. I is missing here. I interpret result. Apply the decision rule described in the analysis plan. Means इसके बाद जो भी decision आएगा, means S not true है, S1 false है, उसको discuss करेंगे. If the value of the test statistic is unlikely based on the null hypothesis, reject the null hypothesis. Okay. Now, what is hypothesis? There are two things. Hypothesis formulated in terms of two hypotheses. H0 is known as null hypothesis and H1 is the alternative hypothesis. Okay, H0 is null hypothesis and H1 is alternative hypothesis. In some books, H1 is also denoted by HA. किससे डिनोट करते हैं? Some books H1 is denoted by HA also. Understood है? Means पहले हम क्या करेंगे,
कि अगर कोई हाइपोथेसिस गिवन होगा तो उसको हम स्टेट करेंगे एच नॉट पे, फिर उसके अल्टरनेटिव कौन सी हाइपोथेसिस होगी, H1 होगी। मींस हाइपोथेसिस में दो चीजें हैं, H नॉट और H1। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, नल हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ what is the hypothesis we want to test if H1 is likely true, so there are two possibility, means अगर H0 और H1 है तो एक क्या हो सकता है कि H0 है तो ये तो मैं कर लूं कि H0 को रिजेक्ट कर लूं, इफ आई रिजेक्ट H0 तो हमें एक्सेप्ट करना होगा H1। अंडरस्टूड है? अगर ये हो सकता है कि H0 है और H1 है तो H0 को रिजेक्ट करेंगे तो H1 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर H0 को एक्सेप्ट करेंगे तो H1 को रिजेक्ट करना होगा। इसका मतलब देखो, द हाइपोथेसिस we want to test is if H1 is likely true, so there are two possibilities, reject H0 and accept H1 because of sufficient evidence in the sample in favor or H1। सैंपल किसके फेवर में होगा, H1 के। do not reject H0 because insufficient evidence to support H1। understood है? okay, very important, note that the failure to reject H0 does not mean the null hypothesis is true। means अगर मैं H0 को रिजेक्ट करने में फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि null hypothesis means H0 is true। अंडरस्टूड है? जैसे कि अगर मैंने H0 को रिजेक्ट किया और उसमें मैं फेल हो गया, मींस जो मेथड है वो फेल कर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि H0 ट्रू है। अगर मैं देयर इज नो फॉर्मल आउटकम दैट सेज एक्सेप्ट H0, it only means that we do not have sufficient evidence to support H1। मींस क्या है, अगर मैं H0 को रिजेक्ट करता हूं और फेल होता हूं उसमें, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली और वाइस वर्सा वी कैन से दैट कि अगर मैं H0 को एक्सेप्ट करता हूं और उसमें फेल हो जाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि H0 फॉल्स है। अंडरस्टूड है? ओके, जस्ट एन एग्जांपल, in a jury trial the hypothesis are, एक ज्यूरी का ट्रायल हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक क्लाइंट एक पर्सन जाएगा जो कि विक्टिम होगा या गिल्टी होगा, या तो वो तो इनोसेंट होगा या तो गिल्टी होगा। हम मान लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस में माना डिफेंडेंट इज इनोसेंट, तो उसका मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी हाइपोथेसिस लेंगे तो H0 एंड पहला वर्क क्या होता है कि अगर कोई कुछ गिवन है तो उसको हमें पहले स्टेट करना होगा, देन हाइपोथेसिस को स्टेट करना होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड थिंग कि मैं H0 और H1 दोनों को क्या लेना होगा, एक्सक्लूसिव, मींस जो H0 पे होगा वो H1 पे नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि या तो मैं H0 को एक्सेप्ट करूं या तो फिर H1 को एक्सेप्ट करूं, या तो H0 को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। अगर मैं H0 को एक्सेप्ट करूंगा दैट मींस H1 डेफिनेटली रिजेक्टेड। ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ पे H0 इनोसेंट, H0 का मतलब क्या है, डिफेंडेंट इज इनोसेंट। ओके, अगर मैंने H0 को रिजेक्ट कर दिया, H0 innocent is rejected if H1 guilty is supported by the evidence। मींस अगर मैं ये कहता हूं कि एक जो पर्सन गया, विक्टिम है या एनीबॉडी जो गया कोर्ट में, तो ज्यूरी के सामने दो चीजें होती है, एक डिफेंडेंट वकील होता है और एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, एक वो कहता है जो उस विक्टिम साइड से होता है वो बोलता है कि दिस इज ही इज इनोसेंट और शी इज इनोसेंट, और दूसरा बोलता है ही इज गिल्टी। अंडरस्टूड है? बट अगर मैंने कहा H0 इज रिजेक्टेड मींस ये इनोसेंट नहीं है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि H1 इज सपोज्ड बाय एविडेंस बियॉन्ड, मींस H1 को सपोज करेंगे गिल्टी है, बट उसके लिए हमें क्या कोर्ट में प्रूफ करने पड़ते हैं, केसेस प्रूफ करने पड़ते हैं। अगर केसेस प्रूफ नहीं हुए, अगर केसेस प्रूफ नहीं हुए, मतलब सॉरी एविडेंस प्रूफ नहीं हुए, एविडेंस दिखाते हैं, अगर एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मींस रीजनेबल डाउट्स के बियॉन्ड है, मींस एविडेंस प्रूफ हो गया, दैट मींस फेलियर टू रिजेक्ट H0 प्रूव गिल्टी डज नॉट इंप्लाई इनोसेंस। कि अगर मैंने ये कह दिया कि
prove guilty does not imply innocence, only that the evidence is insufficient to reject it. मीन्स क्या है कि अगर हम क्या करेंगे कि समटाइम्स क्या होता है जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो ठीक है, दो टाइप से होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं और एक जो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, दो वकील होता है। एच-नॉट कहता है ही इज इनोसेंट, अनदर वन इज सेइंग दैट ही इज गिल्टी। इफ अगर मैंने कहा एच-नॉट को मैंने रिजेक्ट कर दिया, इफ एच-1 इज सपोज्ड टू बी गिल्टी एंड एविडेंस जो मिले वो रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, देन फेलियर टू रिजेक्ट एच-नॉट देन प्रूव गिल्टी। अगर मैंने रिजेक्ट को एच-नॉट को रिजेक्ट करने में फेल हो गया तो मुझे गिल्टी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं प्रूफ कर पाता, दैट मींस does not imply it will be innocent, only that evidence is insufficient to reject it। मीन समटाइम्स क्या होता है कि कोर्ट बोल देता है कि इसके खिलाफ एविडेंस प्रूफ नहीं है, दैट मींस उस बिहाफ पे हम उसको क्या बोलते हैं, इनोसेंट। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि इनोसेंट है, बट उसको insufficient of evidence we will, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, एक केस स्टडी देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रैम चिप्स, मींस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो चिप्स बनाती है, ठीक। क्लेम्स द डिफेक्टिव रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 5%। मींस अगर वो 100 चिप्स बनाती है तो उसकी डिफेक्टिव की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 चिप्स। अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चिप बनाती है, रैम बनाती है, अगर उसमें 100 चिप्स बनती है तो फिर कितनी परसेंट डिफेक्टिव होंगी, 5%। मींस 100 में से 5 चिप्स आर डिफेक्टिव। ओके, लेट P डिनोट द ट्रू डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मींस P को किससे डिनोट करता है, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी से। ओके, वी वांट टू सी इट। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे। अच्छा, कितने डिफेक्टिव है, 5%। तो अगर हम परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 कर सकते हैं। अरे प्रोबेबिलिटी ऐसे करता ना, तो H0 सच दैट P इज इक्वल टू 0.05। अब H1 क्या होगा, H1 सच दैट अगर P इक्वल टू 0.05 है, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, H1 P ग्रेटर देन 0.05। मींस H1 को क्या दिखाना है, दैट मींस कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05% से ज्यादा है। दैट मींस कि इसकी जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो 5% से ज्यादा है। अंडरस्टूड है, समझ में नहीं आया? अगर फिर से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो रैम की चिप रैम बनाती है, ओके, उसमें मैंने कहा कि डिफेक्टिव रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 5%। तो कितने परसेंट, कितनी 100 में से कितनी चिप्स डिफेक्टिव हुई, 5। P denote the true defective probability, means P is a probability of defective item. How many items are defective? 5 items defective in 100 items. That means probability will be 0.05. Understood है? Okay. अगर H0 एक हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस तो क्या करेंगे, the H0 null hypothesis such that P is equals to 0.05. Okay. Then H1 क्या होगा, मींस P ग्रेटर देन 0.05। इसका मतलब उसके डिफेक्टिव आइटम्स कितने हो सकते हैं, ग्रेटर देन 5%। ओके, वी आर गोइंग टू यूज अ सैंपल ऑफ 100 चिप्स फ्रॉम द प्रोडक्शन टू टेस्ट। ओके, अगर हमने एक लेट X डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द सैंपल ऑफ 100, रिजेक्ट H0 इफ X ग्रेटर देन 10, चूज एन आर्बिट्रेरली इन दिस केस। मींस क्या है, अगर X नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है in the sample of 100, ठीक है, रिजेक्ट H0 if X greater than 10। हम H0 को रिजेक्ट कब कर देंगे, जब नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं और अगर 10 से ज्यादा डिफेक्टिव हैं तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। चूज एन आर्बिट्रेरली इन दिस केस, मींस अगर हमें किसी सैंपल को टेस्ट करना है तो ऐसे ही करेंगे, आर्बिट्रेरी रैंडमली 5 टेस्ट चीजें उठाएंगे। तो X इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। X को क्या बोलेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक, एंड P is a probability 0.05। रिजेक्ट कब होगा, 10 is a critical value, means 10 से अगर 10 से ग्रेटर आर इक्वल है तब तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 10 से लेस है, स्लाइटली लेस, तो क्या हो जाएगा, दैट इज डू नॉट रिजेक्ट H0। मींस अगर 100 में से 10 आइटम्स डिफेक्टिव हैं तब तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 9 आइटम्स डिफेक्टिव हैं तब एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट H0 कब होगा, जब P ग्रेटर देन 0.05 और क्रिटिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे गिवन है कि 10 से ज्यादा पे
रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट जहां पे होगा वो वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे 10 क्या है, क्रिटिकल वैल्यू। और जिस रीजन पे डिफेक्ट रिजेक्ट हो रहा है, दैट रीजन इज कॉल्ड critical region. In your examination or MDU examination, they ask what is null hypothesis, what is alternate hypothesis, what is critical value, what is critical region. Okay, we will give the definition of these one in next slide. Okay, why did we choose a critical value of 10 for this example? Because this is the Bernoulli process. The expected number of defectives in a sample is NP. मीन्स आपने बर्नौली ट्रायल्स किया था कि अगर एक बर्नौली ट्रायल्स में क्या था, उसका मीन क्या निकालते थे, NP, where N is a number of population and P is a probability. So if P is equals to 0.05, we should expect 100 into 0.05 is equals to 5 defective in a sample of 100 chips. Therefore 10 defective would be strong evidence that P greater than 0.05. अगर मैंने कहा कि अगर 5 डिफेक्टिव की बात करें, अगर मैं ये कह दूं कि 10 डिफेक्टिव्स हैं, तो इसका मतलब दिस इज अ स्ट्रांग एविडेंस टू प्रूव दिस वन. द 10 डिफेक्टिव वुड बी स्ट्रांग एविडेंस दैट P greater than 0.05. The problem of how to find a critical value for a desired level of significance of the hypothesis test will be further studied. मींस कैसे हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे. क्रिटिकल वैल्यू कैसे समझ में आया कि जिस वैल्यू के बाद, जैसे यहाँ पे 10 है, अगर x ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा. दैट मींस जहां से वैल्यू, जहां से H0 नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू. और जिस रीजन पर रिजेक्ट होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन. जैसे अगर मैंने 10 है तो क्रिटिकल वैल्यू ये है, यानी कि इस रीजन पे 10 10 to 90 मींस 10 to 100 के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड critical region, and critical value is called 10 at this particular example. Okay, now types of error, because are making, when we are making decision, because we are making a decision based on a finite sample. Okay, we have taken a sample size maybe 100,000 or maybe 10,000, some points are there. Because we are making a decision based on a finite sample, there is a possibility that we will make mistake. Okay, अगर हमने 1000 कुछ फाइनाइट सैंपल लेंगे, 1000 10,000 का सैंपल लेंगे, तो उसमें हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल मेक अ मिस्टेक. अंडरस्टूड है. अगर मैंने कहा द हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर, कैसे कैसे हो सकती हैं, द पॉसिबिलिटी आउटकम्स आर, अगर H0 मैंने ट्रू ले ली, मींस पहले हम क्या लेंगे, हाइपोथेसिस लेंगे, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. अगर H0 ट्रू है और H0 को मैंने रिजेक्ट नहीं किया, इफ पहले हम बनाएंगे H0 ट्रू, या तो हो सकता है कि हमने जो नल हाइपोथेसिस लिए वो ट्रू हो, या तो हो सकता है फॉल्स हो. दो ही कंडीशन सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स. अगर मैंने कहा H0 ट्रू है, ठीक है, और H0, जस्ट अ मिनट, अगर मैंने कहा H0 ट्रू है, इसका मतलब H1 फॉल्स. अगर मैंने कहा H1 ट्रू है, इसका मतलब H1 ट्रू है, इसका मतलब H0 फॉल्स. मींस बोथ आर एक्सक्लूसिव ना. अगर मैंने कहा H0 मींस इनोसेंट, अगर मैंने कहा कि यू आर इनोसेंट, नल हाइपोथेसिस आपका है कि यू आर इनोसेंट, इसका मतलब अगर मैंने कहा इनोसेंट का मतलब यू आर गिल्टी. देन अगर मैंने कहा H0 ट्रू, दैट मींस यू आर इनोसेंट. अगर मैंने कहा H0 इज फॉल्स, दैट मींस यू आर नॉट इनोसेंट, दैट मींस गिल्टी. तो अगर मैंने कहा H1 इज ट्रू, दैट मींस कि यू आर गिल्टी, इसका मतलब क्या हो गया, H0 फॉल्स मींस इनोसेंट गलत है. अंडरस्टूड है, नहीं समझ में आ रहा. अरे H0 और H1 बोथ आर एक्सक्लूसिव, पहले ही बताया था. अगर मैंने H0 को ट्रू कहा, अगर मैंने सपोज दैट, जैसे ये एग्जांपल है कि H0 को सिंपली हम कहते हैं कि इनोसेंट है और H1 को गिल्टी कहते हैं. अगर मैंने H0 को एक्सेप्ट किया या ट्रू कहा, H0 इज ट्रू, इसका मतलब क्या है, दिस इज इनोसेंट, पर्सन इज इनोसेंट. अगर मैंने कहा H0 फॉल्स है, इसका मतलब H0 इनोसेंट नहीं है, दैट मींस क्या होगा, H1 दैट इज गिल्टी. तो गिल्टी किसमें है, H1, इसका मतलब H1 क्या होगा, ट्रू. नहीं समझ में आ रहा. अगर मैंने कहा H0 ट्रू है, तो इसका मतलब इनोसेंट.
अगर मैंने कहा H0 फॉल्स है, इसका मतलब गिल्टी, और गिल्टी किसमें है? H1, यानी कि अगर इनोसेंट है तो H0 ट्रू होगा, और गिल्टी है तो H1 ट्रू होगा। वाइस वर्सा आल्सो, अगर H0 गिल्टी है तो H0 फॉल्स होगा, और इनोसेंट है तो H1 फॉल्स होगा। अंडरस्टूड है? अगर मैंने कहा H0 ट्रू है तो मैं क्या कर सकता हूं? आइदर एक्सेप्ट करता हूं H0 या तो रिजेक्ट कर सकता हूं। अच्छा, मैंने कहा कि H0 ट्रू है, यानी कि H0 इनोसेंट है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। H0 ट्रू है और मैंने डू नॉट रिजेक्ट H0, मींस अगर रिजेक्ट नहीं किया तो क्या किया होगा? एक्सेप्ट किया होगा H0। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया H0 तो क्या होगा? डिसीजन मेरा करेक्ट होगा। अंडरस्टूड है? अगर मैंने क्या किया, अगर H0 ट्रू है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो किस टाइप की एरर होगी? टाइप 1 एरर, मींस H0 ट्रू एंड रिजेक्ट H0। तो ये किस टाइप की एरर है? टाइप 1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, कि ये आपके एग्जाम में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज टाइप 1 एरर, एंड अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या होगा? व्हेन H0 इज ट्रू, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है? टाइप 1 एरर क्या होगा? रिजेक्ट H0 वेयर H0 इज ट्रू। अंडरस्टूड? ओके, अगर मैंने कहा कि H1 इज ट्रू, मींस H0 क्या है? फॉल्स है। अगर मैंने कहा H0 फॉल्स है तो मैं डू नॉट रिजेक्ट H0, मींस अगर H0 को रिजेक्ट नहीं किया तो क्या किया होगा? एक्सेप्ट H0। एक्सेप्ट H0 मींस H1 ट्रू है या तो H0 फॉल्स है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 2 एरर। अदरवाइज अगर रिजेक्ट H0 और जहां पे H0 फॉल्स है तो करेक्ट डिसीजन होगा। डिसीजन क्या होगा? करेक्ट होगा। इसका मतलब मींस टाइप आपके एग्जाम में आएगा टाइप 1 एरर क्या है तो टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 एरर क्या होगा? रिजेक्ट H0 वेयर H0 इज ट्रू। अंडरस्टूड है? टाइप 2 एरर क्या होगा? टाइप 2 एरर को हम दो टाइप से डेफिनेशन दे सकते हैं। रिजेक्ट H0 रिजेक्ट H1, रिजेक्ट H1 वेयर H1 इज ट्रू, या तो हम कह सकते हैं एक्सेप्ट H0 वेयर H0 इज फॉल्स। अंडरस्टूड? ओके, thank you so much. Okay, now next class we will discuss this topic, hypothesis test, remaining of this topic. Okay, thank you so much.